dealing with urban development. The department and other officials from the states and union territories participated. It's believed that the launch of the mobile app will give an impetus to the development, the implementation strategy of the scheme, and also besides promoting paperless digital accessing of microcredit facilities by street vendors. Earlier we had only this portal. We only had the web portal for administering the complete PM Swanidhi. Now we have this mobile application, and that is going to make things much more simpler. Just with a mobile phone, a smartphone, anybody can be admitted for the PM Swanidhi scheme. The flood and landslide situation remains grim in Assam and Bihar. Several rivers in both the states are in spate. Relief and rehabilitation work gathers momentum in the flood-affected districts of Assam and Bihar. Here's more. Flood fury continues unabated in several parts of the country. Several districts in Assam are in the grip of floods. In Bihar, the flood situation remains grim as several rivers are in spate. Several areas of Assam are in the grip of floods. Nearly 35,75,000 persons in Assam are reeling under the fury of floods. 28 districts of the state are affected by floods. Dhubri is the most affected district with nearly 8,72,066 affected persons, followed by Barpeta, Gwalpara and Morigaon, where over 4 lakh persons are affected by floods. The low-lying areas of Chirang district have seen heavy rain and waterlogging, damaging several homes. Chief Minister Sarbananda Sonowal is himself monitoring the flood rescue and rehabilitation works in Assam. We are running 303 relief camps and 445 relief distribution centers, and 49,000 people are residing in the relief camp presently. Hope that within 2-3 days, if situation remains same, then it will be stable. Whereas the flood situation remains grim in several districts of Bihar. Gandak, Buri Gandak, Bagmati, Adwara, Kamla Balan, Kosi, Mahananda and Paraman are flowing above the danger mark. According to the Disaster Management Department, 8 districts of the state, Sitamarhi, Shivhar, Supol, Kishanganj, Darbhanga, Muzaffarpur, Gopalganj and East Champaran are reeling under the fury of the floods. Met Office has predicted light rain in the catchment area of all rivers in Bihar. With Kamal Bora in Assam and Salman Haider in Patna, News Night Desk, DD India. The test, track and treat strategy of the centre is being implemented by the states and union territory governments and is proving to be an appropriate strategy to deal with the COVID-19 pandemic. India has seen a steady increase in the number of patients recovering from COVID. While this has resulted in 63.33% of the total positive cases recovering, intensive contact tracing is being implemented and is aimed at restricting the spread. Due to the test, track and treat strategy of the centre, the number of patients recovering from COVID-19 infection is increasing continuously. As per the government data, the actual caseload of COVID-19 patients is only 3,42,756. More than 63.33% of the total cases have recovered. India has 727.4 cases per million. On the global scale, cases per million population in India are 4 to 8 times less than some European countries. The case fatality rate at 18.6 deaths per million is one of the lowest in the world. It is also noteworthy that in India, less than 1.94% of the cases are in ICUs, 0.35% of cases are on ventilators, and 2.81% of cases are on oxygen beds. Medical infrastructure is being continuously augmented across the country. As a result of concerted efforts, the COVID-19 hospital infrastructure is much stronger. India now has 1,383 dedicated COVID hospital, 3,107 dedicated COVID healthcare centers, and 10,382 COVID care centers. State governments have also been playing a crucial role in the fight against COVID-19. They are strictly following the directions of the centre, strengthening their health infrastructure and continuously increasing their testing capacity. In Arunachal Pradesh, 10 response teams have been formed to accelerate the process of testing. Capital Itanagar is under lockdown till 20th of July.
In Odisha, the government has announced to enforce complete lockdown for 14 days in some parts. The most affected districts like Ganjam, Khordha, Cuttack, Jajpur and Rourkela would remain under complete lockdown till midnight of 31st July. During this period, all the shops, offices and institutions would remain closed. Medical stores, vegetable shops, departmental stores and milk shops would open between 6 am and 1 pm. Meanwhile, complete lockdown for 3 days has been imposed in Goa. During this period, all the institutions would remain closed except essential services. Janta curfew is also in force in the state till 10th August from 8 pm to 6 am. In view of increasing COVID cases in Uttarakhand, complete lockdown has been announced on the weekends. However, lockdown won't be extended in Karnataka after 21st of July. Chief Minister B.S. Yedurappa held a meeting with senior ministers and officers and reviewed medical facilities in the state. There is no further extension of lockdown. Already we take an opinion from the expert who is handling the COVID. So their opinion is 1 week. And we will put every college, we will put the nodal officer from the government of Karnataka. They will go and check how many beds, how many patients is there, how many COVID, how many non-COVID, everything will every day monitor. Assam government has decided to start an extensive campaign to encourage plasma donations. It has announced that plasma donors of the state will get preferences in all government facilities, including government job interviews. With Bureau Reports, Newsnight Desk, DD India. And that's all we have in this bulletin. Thanks for being with us. Namaskar. नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर दिया जोर। कहा, बहुपक्षवाद में समकालीन दुनिया की वास्तविकताएं प्रतिबिंबित होनी जरूरी। कोविड महामारी को विश्व संस्था का नए स्वरूप में पुनर्जन्म बताया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जताई भारत की अटूट प्रतिबद्धता। लेह के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत कोई कमजोर देश नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा देश, देंगे मुंहतोड़ जवाब। चीन के साथ बातचीत जारी, लेकिन कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के आरोपों का दिया करारा जवाब। कहा, प्रमुख देशों के साथ हमारे रिश्ते हुए हैं मजबूत। अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ नियमित शिखर सम्मेलनों के जरिए बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कद। चीन के साथ राजनीतिक तौर पर हम कहीं ज्यादा बराबरी के साथ पेश आ रहे हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचे का किया जा रहा है विकास। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। कुलगाम में 3 आतंकवादी ढेर, मारा गया जैश कमांडर वलीद। नागनत चिमर इलाके में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। राजस्थान उच्च न्यायालय में कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई स्थगित। सोमवार को अगली सुनवाई। मंगलवार शाम 5:30 बजे तक विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे स्पीकर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा उनके घर तक पहुंचाने के लिए जारी हुआ पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप। वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अब तक 1,54,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों ने किया आवेदन। 48,000 से ज्यादा को पहले ही मिल चुकी है स्वीकृति। भारत में कोविड-19 का रिकवरी रेट 63.33%। 6,35,000 से अधिक लोग हुए संक्रमण से मुक्त। पूरे गोवा में शुक्रवार से 3 दिन, जबकि ओडिशा के कई हिस्सों में 9 से 14 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन। बिहार में हालात का जायजा लेने जाएगी केंद्रीय टीम। और बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। असम में अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 102 लोगों की मौत। बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 8 जिलों की करीब 3 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश।
तो आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के सुधारों पर जोर देते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए और इसके लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए ये समय बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र के वर्चुअल संबोधन में पीएम ने कहा कि विश्व युद्ध 2 के बाद संयुक्त राष्ट्र के गठन से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है और संयुक्त राष्ट्र से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के निर्विरोध चुने जाने के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र के इस साल के उच्च स्तरीय खंड को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। प्रतिवर्ष होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस वर्ष के सत्र का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के यूएन की आवश्यकता है। पीएम ने बहुप्रतीक्षित संयुक्त राष्ट्र सुधारों का आह्वान करते हुए कहा कि बहुपक्षवाद में समकालीन दुनिया की वास्तविकताएं प्रतिबिंबित होना जरूरी है। India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात की पृष्ठभूमि में आयोजित सत्र में पीएम ने कहा कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का उदय हुआ, वैसे ही कोविड-19 के खिलाफ जंग में विश्व संस्था के सुधारों और इसके नए स्वरूप में पुनर्जन्म का अवसर प्रदान करती है। While celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों के बारे में बात करते हुए पीएम ने याद किया कि कैसे शुरुआत से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों और इकोसॉक का समर्थन किया है। उन्होंने इकोसॉक के शुरुआती अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका को भी याद किया कि सर रामास्वामी मुदलियर एक भारतीय उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत में इसे एक जन आंदोलन बनाया है और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने $300 अरब का योगदान दिया है। We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India, integrated with the global economy. प्रधानमंत्री ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए भारत के प्रयासों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पर्यावरण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। While marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures.
प्रधानमंत्री ने 100% स्वच्छता हासिल करना, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, 2022 तक सभी के लिए आवास जैसे भारत के प्रयास भी रेखांकित किए। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। राजनाथ सिंह ने लद्दाख पहुंचकर सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की और सुरक्षा हालात का भी जायजा लिया। एक अग्रिम सैन्य चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब एक दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे तो उन्होंने जवानों के साथ काफी वक्त बिताया। सेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री खुद एक राइफल से निशाना लगाते दिखे। राजनाथ सिंह ने पैंगोंग झील के तट पर स्थित लद्दाख के एक अग्रिम सैन्य चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अशांति नहीं शांति चाहता है, लेकिन अगर भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लद्दाख और श्रीनगर के दौरे पर हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ हैं। यात्रा के पहले दिन राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। वहां उन्होंने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और लुकुंग चौकी पर जाकर भारतीय सेना के जांबाज जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प के दौरान भारत के 20 सैन्य कर्मियों की शहादत का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर 2 टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लद्दाख दौरे में रक्षा मंत्री ने ऊंचाई वाले एक अग्रिम अड्डे पर सैन्य अभ्यास देखा, जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, टैंकों के साथ कमांडो भी शामिल हुए। सैन्य अभ्यास में थल सेना और वायुसेना ने क्षेत्र की तैयारियों का प्रदर्शन किया। सैन्य अभ्यास में बड़ी संख्या में कमांडो, टैंक, बीएमपी युद्धक वाहनों, अपाचे, रुद्र और MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। जवानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पैरा ड्रॉपिंग और अन्य करतबों का प्रदर्शन किया। करीब 5 घंटे की यात्रा के बाद राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां वो अलग अलग बैठकों में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ले रही हैं। रक्षा मंत्री दौरे में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा कर रही हैं। शनिवार को भी उनका कई कार्यक्रम है, जहां वो सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लेह से रमेश चंद्रा और श्रीनगर से सलमान काजी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की विदेश नीति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया।
विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा, राहुल गांधी ने विदेश नीति पर कुछ सवाल उठाए हैं जिनके जवाब यहां हैं। हमारी प्रमुख भागीदारी मजबूत है। अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ नियमित रूप से अनौपचारिक बैठकें हुई हैं। भारत ने चीन के साथ राजनीतिक रूप से भी संवाद जारी रखा। विश्लेषकों से पूछ लें। अपने अगले ट्वीट में विदेश मंत्री ने लिखा, हम अपने मन की बात अब ज्यादा खुलकर रखते हैं। सीपैक, बीआरआई, दक्षिण चीन सागर, संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकवादियों पर ये सब उदाहरण हैं, मीडिया से पूछें। और एक अन्य ट्वीट में एस जयशंकर ने लिखा, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर की पुरानी समस्या को दूर किया। 2008 से 14 के साथ 2014 से 20 की तुलना करें। बजट में 280% तक की बढ़ोतरी की। 32% सड़क निर्माण, 99% पुल और 6 गुना सुरंगों का निर्माण किया। हमारे जवानों से पूछें। साथ ही अपने अगले ट्वीट में एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसियों के बारे में कुछ तथ्य। श्रीलंका और चीन के बीच हम्बनटोटा बंदरगाह समझौता 2008 में संपन्न हुआ था। मालदीव के साथ संबंध कमजोर हो गए थे। 2012 में राष्ट्रपति नशीद के शीर्ष पर काबिज होने के बाद अब संबंधों में बदलाव है। हमारे व्यवसायों से पूछें। और एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में पूर्ण परियोजनाओं, सलमा बांध, संसद, विस्तारित प्रशिक्षण और कनेक्टिविटी जैसे काम हुए। अफगानिस्तान के लोगों से पूछो। और पाकिस्तान जिसे आपने छोड़ दिया, निश्चित रूप से एक तरफ बालाकोट और उड़ी और दूसरी तरफ शर्म अल शेख, हवाना और 26/11 के बीच का अंतर स्पष्ट है। अपने आप से पूछो। तो जाहिर है कि सिलसिलेवार ढंग से विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल उठाया गया उसका बहुत व्यापक तरीके से जवाब दिया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ नाइट। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। और ब्रेक के बाद खबर राजस्थान से, जहां सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट और कांग्रेस के बागी विधायकों को आज अदालत से मंगलवार शाम 5:30 बजे तक राहत मिली। स्पीकर मंगलवार शाम 5:30 बजे तक विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में कांग्रेस के इन असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। राजस्थान में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासी मैदान में जारी संग्राम के बीच अब ये लड़ाई अदालत में भी लड़ी जा रही है। कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की डिवीजन बेंच ने ये याचिका सुनी। पायलट ग्रुप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस की वैधानिकता पर अपना पक्ष रखा, तो स्पीकर की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नोटिस की वैधानिकता पर अपने जवाब पेश किए। सोमवार को भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल अदालत ने असंतुष्ट विधायकों को भेजे गए नोटिसों पर अध्यक्ष की कार्रवाई मंगलवार शाम तक के लिए टाल दी है। यानी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मंगलवार शाम 5:30 तक विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। जो आज 5 बजे की सुनवाई है उसको ट्यूसडे को 5:30 बजे तक के लिए डेफर किया जाता है। मंगलवार 5:30 बजे पहले तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।
सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई है। स्पीकर सीपी जोशी ने इस नोटिस में विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की कांग्रेस की मांग पर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा था। विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने कहा था कि विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की सोमवार और मंगलवार को हुई 2 बैठकों में भाग लेने के लिए जारी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। कांग्रेस का कहना है कि पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष ने इन असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किए। हालांकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। इस बीच मीडिया में सामने आए ऑडियो से जुड़े आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस जिस कथित ऑडियो के हवाले से उनके ऊपर आरोप लगा रही है उसमें उनकी आवाज नहीं है। शेखावत ने एक बयान जारी कर कहा, ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। उधर बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला कर रही है। टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले वो तैयार है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। फिलहाल आरोपों प्रत्यारोपों के बीच राजस्थान में सियासत जारी है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये क्या रुख लेती है। जयपुर ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीजी न्यूज। और अब बात बाढ़ की, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर है। असम में अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 102 लोगों की मौत हो गई है, तो बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में 8 जिलों की करीब 3 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। असम के कई जिले बाढ़ के घेरे में हैं। बिहार में कई नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से राज्य में तकरीबन 35,75,000 की आबादी इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। दुबरी तकरीबन 8,72,066 प्रभावित लोगों के साथ सबसे अधिक प्रभावित जिला है। इसके बाद बारपेटा, गोलपारा और मोरी गांव में प्रत्येक जिले में 4 लाख से अधिक प्रभावित हुए हैं। डिब्रूगढ़ में लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं चिरांग जिले के निचले इलाकों में भारी बारिश और जल जमाव से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल राज्य में बाढ़ राहत कार्यों की खुद निगरानी कर रहे हैं। We are running 303 relief camps and 445 relief distribution centers, and 49,000 people are residing in the relief camp presently. Hope that within 2-3 days, if situation remains same, then it will be stable. बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य की 8 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। असम से कमल बोहरा और पटना से सलमान हैदर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। कोविड के खिलाफ जंग में लगातार मजबूती आ रही है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा संक्रमितों से ज्यादा है और मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है। देश में केवल 3,42,000 सक्रिय मामले हैं, लेकिन 6,35,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र राज्यों को भी इस दिशा में पूरा सहयोग कर रहा है। बिहार में केंद्र की टीम स्थिति की समीक्षा के लिए जाएगी। केंद्र के गंभीर और तेज प्रयासों की वजह से कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के मुताबिक देश भर में कोविड-19 के मरीजों की वास्तविक संख्या केवल 3,42,756 है। 63.33% से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कोविड संक्रमण के मामले कुछ यूरोपीय देशों की तुलना में चौथाई से 8वें हिस्से तक कम है।
1.35 अरब लोगों के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड संक्रमण के 727.4 मामले हैं। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 18.6 मौतों के साथ मृत्यु दर भी दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। आईसीयू में 1.94% से कम मरीज, वेंटिलेटर पर 0.35% मरीज और ऑक्सीजन बेड पर 2.81% मरीज रखे गए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए देश भर में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज देश में 1383 समर्पित कोविड अस्पताल, 3107 समर्पित कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और 10,382 कोविड देखभाल केंद्र है। उधर राज्यों की बात करें तो लगातार केंद्र के सहयोग से तमाम निर्देश कड़ाई से लागू करने के साथ साथ स्वास्थ्य के ढांचे के साथ टेस्टिंग को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में टेस्टिंग को तेज करने के लिए 10 रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। राजधानी ईटानगर में लॉकडाउन 20 जुलाई की सुबह तक जारी है। वहीं ओडिशा सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित खोर्धा, कटक, जाजपुर जिलों में राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे और लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन के दौरान दवा, सब्जी, किराने का सामान और दूध बेचने वाली दुकानें सुबह 6 से 1 बजे के बीच खुली रहेंगी। गोवा में 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तकरीबन सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। गोवा में 10 अगस्त तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू भी जारी है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रदेश में सप्ताहांत में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। उधर कर्नाटक में 21 जुलाई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया और वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। There is no further extension of lockdown. Already we take an opinion from the expert who is handling the COVID. So their opinion is 1 week. And we will put every college, we will put the nodal officer from the government of Karnataka. They will go and check how many beds, how many patients is there, how many COVID, how many non-COVID, everything will every day monitor. इस बीच कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के महत्व को देखते हुए असम के स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। असम देश में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाले राज्यों में अग्रणी रहा है और वो सबसे ज्यादा प्लाज्मा संग्रहण की योजना बना रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्लाज्मा डोनर्स के लिए कुछ प्रोत्साहन की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। इसके जरिए स्ट्रीट वेंडरों के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। ये ऐप डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Earlier we had only this portal. We only had the web portal for administering the complete PM Swanidhi. Now we have this is a mobile application, and that is going to make things much more simpler. Just with a mobile phone, a smartphone, anybody can be admitted for the PM Swanidhi scheme. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत प्रविष्टियां देने की समय सीमा बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। देश भर में स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों की तरफ से इसमें बढ़ चढ़कर रुचि दिखाए जाने के बाद समय सीमा बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी ऐप पर निर्भरता कम करने के लिए 4 जुलाई को इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। अब तक इसके तहत भारतीय इकाइयों से विभिन्न श्रेणियों में 2353 प्रविष्टियां आ चुकी हैं। आइए अब देखते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि कुलगाम में मारे गए 3 आतंकवादियों में अभी 2 की पहचान नहीं हुई है। मार गिराए गए जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर वलिद आईईडी एक्सपर्ट था और पिछले 1.5 साल से सक्रिय था।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया। अपने जवाब में पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ सही थी और उसे फर्जी नहीं कहा जा सकता। पालघर लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले की एक याचिका पर संज्ञान ले चुका है। ऐसे में एक के बाद एक याचिकाओं को बढ़ाकर सुनवाई करने का कोई सवाल नहीं उठता। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने वाराणसी के सेवापुरी का दौरा किया। उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सेवापुरी को मॉडल ब्लॉक बनाने